Hello students, myself Rakesh Misra. This is important series of revision. As you all know, our overall lesson that may assist for the final examination is over. Since long time, you have seen the revision of different kinds of MCQs, fill in the blanks, true, false, only the concept basis question from the different lesson. I have yet revised the evolution, that is our environment chapter from the previous video lecture. And now, since 3 video lecture, you have seen the revision of heredity and evolution chapter. Actually, after the fulfill revision of MCQs, fill in the blanks, true false type question, I will bring you for the very short answer type and long answer type question. But you need to focus on the concept basis question. This is part 3rd video, not part 3rd, this is part 4th video of part 4 video of full revision of heredity and evolution chapter. Actually, in part 1 you have learned the question number 1 to 8. In part 2 you have learned the revision of 9 to 15. In part 3 you have learned the question number 16 to 24. And this is the part 4 video in which I will aware you the question number 25 onward, and still MCQ is going on. After that I will cover the fill in the blanks, true and false question type, but in this session you will learn only the MCQs, and MCQs 25 onward. As you know that the portion of evolution is no more in the lesson, so only heredity portion that I have selected for you, the key points, key characteristics or key concepts from the heredity, and the related question that may ask probably in the as in 5 marks or in the 2 marks or 1 marks question in upcoming examination. So you need to focus with the video lecture, and I hope you will make the notes along with the video lecture properly. Now back to question number 25. Now the question number 25. Question number 25. First of all, you need to revise the question number 24 that was over in previous video lecture, and all about concept regarding 24 is over. The new species form may be formed if there is chromosome number change in the gametes. Gametes में क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा तो नई स्पीसीज का जनरेशन होगा. अगर नंबर 46 है तो देखो ध्यान से, अगर नंबर 46 है तो वो हमेशा ह्यूमन बीइंग होगा. जैसे ही 47 होगा या जैसे ही 48 होगा या जैसे ही 92 होगा, क्रोमोसोम नंबर बदलते ही फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बदल जाएंगे. ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर का कॉन्सेप्ट था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन जाइगोट ह्यूमन इज, इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज, कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन का जाइगोट होता है उसमें कितना होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स में मैंने बताया था, कई बार इसको रिवाइज भी कराया था कि सेक्स क्रोमोसोम्स कितना होता है, XX एंड XY, यही होता है सेक्स क्रोमोसोम्स. बाकी XX के साथ जो 44 और 44 जो होता है ये ऑटोसोम होते हैं जो सिमिलर होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो. ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्रोमोसोम नंबर जो जाइगोट में होता है. अब जाइगोट में कितना क्रोमोसोम होता है भाई, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखो जाइगोट डिप्लॉयड होता है, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो 46 ही होता है, जो बड़ा होकर के क्या बनाता है, ये इंसान बनाता है. और जाइगोट क्या होता है, शुरुआत में जाइगोट जो है ऐसे एक सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की तरह से दिखता है, तो वो बार बार माइटोसिस करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिटेन रखता है, और वो ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन पूछ रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स में, सेक्स क्रोमोसोम्स अगर है जाइगोट का तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो है जाइगोट में जो क्रोमोसोम है वो हमेशा 2 होगा. नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो XX होगा या फिर XY होगा, तो XX क्या है, XX ये 2 है, या XY होगा तब भी 2 ही होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा 2 होता है. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, बी हो जाएगा. सभी कॉन्सेप्ट को आप लिखेंगे, आप भूल रहे हैं तो मैं रिवाइज करा दूं, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि कैसे आंसर को लिखना है. तो जैसे 25 लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया, ये जगह को छोड़ दिया, ऑप्शन में क्या भर दिया, 2 भर दिया, लेकिन नीचे आपको एक्सप्लेन भी करना है. अगर आप इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं तो आपको ये आंसर लिख करके छोड़ देना है, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अब आते हैं 26, रिविजन ऑफ 26 पे. सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. कह रहा है
कि इसमें से ऐसे ग्रुप को छाटिए जो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर कर रहे हो। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है भाई? दो ह्यूमन बीइंग हो, दोनों का वेट ऑलमोस्ट 50 किलोग्राम हो, दोनों का कलर ब्लैक हो, दोनों का हेयर कलर क्या हो? घुंघराला हो, ठीक है, एब नॉर्मल टेक्सचर हो, दोनों का आई कलर जो है, दोनों का जो आई कलर है वो ब्लू हो, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ये कब पॉसिबल है क्वेश्चन पूछ रहा है। द टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, टू स्पीसीज ऑफ अ जीनस, टू जेनरा ऑफ अ फैमिली एंड टू जेनरा ऑफ टू फैमिलीज। देखो अगर एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल हैं, जैसे एक है होमोसेपियंस और दूसरा है होमोसेपियंस, तो इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास कोई प्लांट्स है जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, बहुत बड़ा नाम होता है। हिबिस्कस का पूरा नाम है हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, जिसको चाइना रोज बोलते हैं। तो हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस का जो कलर होता है ना, वो हमेशा रेड होता है। अगर कलर रेड नहीं है तो हिबिस्कस रोजा के अलावा चाइनेंसिस के अलावा कोई और होगा, यानी इसमें जीनस सेम है, स्पीसीज बदल जाएगा तो भी कैरेक्टर बदल जाएगा। यानी कि एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल हैं तो मैक्सिमम कैरेक्टर शेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अगर वो दो स्पीसीज एक ही जीनस से हो तो भी नहीं मिलेगा कैरेक्टर्स उतना। अगर एक ही फैमिली के दो जीन जेनरा हैं जीन, तो वो भी कैरेक्टर सेम कैरेक्टर नहीं शेयर करेंगे। और अगर दो जेनरा एक फैमिली के हैं तो भी कैरेक्टर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये टू फैमिली के अगर हैं तो सवाल ही नहीं उठता है, एक फैमिली के तो मिल ही नहीं रहा, दो फैमिली का कहाँ से मिलेगा? तो बी सी डी ऐसे ही नहीं सही है, ऑप्शन क्या सही है? ए सही है, ठीक है। यानी कि अगर दो कैरेक्टर्स दो इंडिविजुअल्स एक ही स्पीसीज के हैं तो वो शेयर करेंगे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स। मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स मीन्स द सिमिलरिटी बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है ना? चलो 27 पे आ जा रहे हैं, 27 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो पेयर्स होते हैं और वो आराम से पेयरिंग कर लेते हैं, परफेक्टली पेयर्स कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक को छोड़ करके, दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर, कह रहा है कि एक को छोड़ करके बाकी सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, वो क्या है? लार्ज क्रोमोसोम्स स्मॉल क्रोमोसोम्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वाई क्रोमोसोम जेड क्रोमोसोम, तो जेड क्रोमोसोम्स जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 12 में है, वो बर्ड्स में होता है, ह्यूमन बीइंग में तो होता नहीं है। ये वाई क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट वन वाई क्रोमोसोम्स का, यानी कि 44 प्लस वाई वाई किसी ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में, मेल ह्यूमन बीइंग में क्या है? 44 प्लस एक्स वाई होता है, वाई पेयर में होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ह्यूमन मेल ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर, सभी तो पेयर्स में होता है, ये कितने पेयर्स में होगा? 22 पेयर्स में, लेकिन वाई पेयर्स में नहीं होता है, वाई का दूसरा पार्ट होता ही नहीं, वाई अकेले होता है, एक्स के साथ रहता है, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसको आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट वाई itself single remain along with X in male chromosomes form the characteristics of male that responsible for the maleness in human being, and there is no pair, so the option number C is right. Now next 28, which of the following is totally impossible outcomes of Mendel's experiment? कह रहा है कि इसमें से कौन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से टोटली जो है वो टोटली इम्पॉसिबल है, रिजल्ट इसमें से मेंडल के हिसाब से कौन है? 3 टाल 1 शॉर्ट, ये तो आया ही था, ऊपर बताया था कि ये F2 जनरेशन में फिनोटिपिकली जो जनरेशन रेशियो था वो 3:1 का ही था, 3 टॉल 1 ड्वार्फ आया था, और इसका जीनोटिपिक क्या था? 1:2:1 आया था, ठीक है। तो F2 में 3:1 का रेशियो पॉसिबल है, यानी ये सही है, ठीक है। इसमें ये छाटना है कि कौन इसमें से टोटली जो है इम्पॉसिबल है, यानी ये पॉसिबल है। 24 टाल 8 शॉर्ट, अब 3:1 के रेशियो को अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो 24:8 को अगर हम ऐसे
वैल्यू में लिखे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा 24/8, यानी 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी ये भी तो 3:1 आ गया, ये भी तो 3:1 आ गया, यानी ये भी पॉसिबल है। अब ये यहाँ पे देखो 8 टाल 0 शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं था, यानी यही इम्पॉसिबल कैरेक्टर्स है। 4 टाल 1 मीडियम हाइट, कह रहा है कि 4 टाल 1 मीडियम हाइट जो है ये पॉसिबल है कि ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो ये होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, ये हो सकता है हेट्रोजाइगस हो, ठीक है, और एक मीडियम हाइट का हो सकता है। लेकिन 8 ये टाल हो और 0 शॉर्ट हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और यही आंसर सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो 28 ख़त्म हो गया, अब 29 पे आ गए हम। 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। कह रहा है इसमें से कौन ऐसा कंक्लूजन है जो डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है मेंडल का। अब आगे क्या पूछ रहा है, ओनली वन पेरेंटल ट्रैट इज एक्सप्रेस, कह रहा है ओनली वन पेरेंटल ट्रैट्स इज एक्सप्रेस। ये डायरेक्ट कंक्लूजन था कि अगर पेरेंटल कैरेक्टर डोमिनेंट है, जैसे ये टाल है, कैपिटल टी है, और दूसरा क्या है स्मॉल टी है, ठीक है, तो इनसे जो क्रॉस करवाओगे आगे के जनरेशन में ये टाल होगा, ठीक है। जब ये टाल का क्रॉस प्योर टाल का एक प्योर ड्वार्फ से करवाओगे तो आगे सब टाल होगा, तो इसका क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, इसके ये निकालेंगे ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स, तो ये सही है, ठीक है। आगे क्या रहा है, 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रैट इज इनहेरिटेड इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रैट्स, ये पॉसिबल है, 1 कॉपी जा सकता है, 2 कॉपी जा सकता है, 4 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, कितना भी कॉपी जा सकता है, और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है तो वेरिएशन नहीं आएगा, यानी कि कॉपीज जो है एक ही कॉपी जाएगी, ठीक। तो आगे आते हैं नेक्स्ट, फॉर रिसेसिव ट्रेड्स टू बी एक्सप्रेस्ड बोथ कॉपीज शुड बी आइडेंटिकल, ये भी पॉसिबल है भाई। अब यहाँ पे देखो कोई रिसेसिव ट्रेड्स है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेसिव ट्रेड्स के लिए दोनों कॉपीज इक्वल होने चाहिए, तो रिसेसिव ट्रेड्स में तुमने पढ़ा होगा कि जो रिसेसिव ट्रेड्स होता है वो एक रिसेसिव ट्रेड्स की एक कॉपी इनफ नहीं होती, दोनों कॉपी रहेगी तब जाकर के वो रिसेसिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल कोई किसी को ड्वार्फ बनाना है तो उसके जीनोटाइप में हमेशा जो है स्मॉल टी यानी कि एक पेयर्स ऑफ जीन्स आने चाहिए, अगर ये पेयर्स ऑफ जीन्स नहीं है यानी जीन्स जेनेटिक पेयर्स नहीं है तो वो क्या होगा, टाल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी, ये प्रॉब्लम तब आएगी जब आप पेयर्स में नहीं रखेंगे, जैसे ये कैपिटल टी रख देंगे और दूसरा स्मॉल टी है तो ये टाल हो जाएगा। तो हमेशा जो है रिसेसिव ट्रैप्स के साथ स्मॉल टी यानी पेयर्स में होने चाहिए जीन्स। डी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड, ये आंसर जो है ये डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है मेंडल्स का। नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन चैप्टर तुम लोगों का गायब हो गया, नहीं तो उसमें समझाया जाता है डार्विन का रूल है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है मेंडल का रूल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, डार्विन का रूल है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को एक्सप्लेन कर दें। 29 क्या बोल रहा है, विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, कह रहा है इसमें से कौन सा डीएनए का एक कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन, कह रहा है इसमें से कौन सी डीएनए का इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन के इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, यानी कि कौन सा इसमें से सेक्शन ऐसा है जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, डीएनए का कौन सा ऐसा सेक्शन होता है जो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन देता है। तो डीएनए के छोटे से सेक्शन को क्या बोलते हैं, डीएनए के छोटे से सेक्शन को बोलते हैं जीन। इसको आप लाइव क्लासेस में भी कई बार बताया था, वीडियो लेक्चर में भी कई बार बताया था कि डीएनए जो होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उस डीएनए के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। ईच सेगमेंट इज नोन एज जीन एंड दैट जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन। एक जीन के पास एक प्रोटीन का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये एक से ज़्यादा का प्रोटीन का इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन्स, सो सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज द जीन्स, ठीक है।
ऑप्शन डी हो जाएगा और इसको एक्सप्लेन कर लीजिए अपने लैंग्वेज में। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय। कह रहा है कि मेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने परसेंट तक सही है। मेल अगर कोई पेरेंट्स है, ठीक है, उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि उसमें मेल की प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है, मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर मेल होगा तो उसके चांस कितने हैं। देखो इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि मेल कितना होंगे। किसी भी पर्सन का, किसी भी कपल के अगर बच्चे हैं 5, तो आप आंख बंद करके फ़ोन पे नहीं बता सकते 5 लड़कियां होंगी या 5 लड़के होंगे। तो ये वैरीज करता है, हमेशा इसमें वैरायटी आती है। ठीक है, क्यों वैरायटीज आती है भाई, स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स अगर ओवा से फ्यूज कर रहा है तो गर्ल्स होगी। स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम्स अगर ओवा से फ्यूज कर लेगा तो वो बॉय होगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जब 2 तरह के स्पर्म हैं तो ये 2 तरह के जेंडर भी तो होंगे। अगर एक ही तरह का स्पर्म होता, जैसे सिर्फ मेल में एक्स क्रोमोसोम्स होता, ठीक है, मेल में एक्स क्रोमोसोम्स होगा तो हम आँख बंद करके कह देंगे 100% प्रोजेनी विल बी गर्ल। लेकिन मेल में वाई भी क्रोमोसोम्स होता है, तो यहाँ पे चांस दोनों के इक्वल नहीं रह सकते हैं, वैरी करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक्स ही फ्यूज करता है या 50% एक्स या 50% वाई फ्यूज करता है, ऐसा भी नहीं। ये कोई भी फ्यूज कर सकता है, तो ये इस वजह से ये वैरी करता रहता है। किसी के 2 बच्चे होते हैं तो 1 लड़कियां होती है, किसी के 2 लड़के होते हैं तो 1 लड़कियां, तो किसी के 2 लड़कियां होती है 1 लड़की, किसी के सभी लड़कियां होती है, किसी के सभी लड़के होते हैं। तो ये वैरी करता रहता है, इसी वजह से वैरी करता रहता है, क्योंकि डीएनए क्यों ये जो स्पर्म है, स्पर्म जो है वो फिक्स नहीं है। स्पर्म में वाई कंटेनिंग स्पर्म इफ फ्यूज विद द ओवा देन देयर विल बी द गर्ल, देयर विल बी द बॉय। इफ एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम्स फ्यूज विद द ओवा देयर विल बी बॉय। तो ये वैरी करता रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 32 पे आते हैं। 32 क्या कर रहा है, हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। कह रहा है इसमें से किसका परफेक्ट पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम्स का, गर्ल्स का, बॉयज़ का, दोनों का, डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो गर्ल्स का तो परफेक्ट पेयर होता है, एक्स एक्स होता है क्रोमोसोम्स का, प्लस 44, यानी ऑटोसोम भी पेयर्स में होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं 44। ठीक है, एक्स एक्स। इन बॉयज द ऑटोसोम्स आर 44 while the sex chromosomes are XY. It means the autosomes are in perfect pairs but sex chromosomes are not in perfect pairs. So the option for 32 is girl. Option A, girls have the perfect pairs of sex chromosomes while boys has not perfect pair. One is X while other is Y. So option number for 32 question, the option number A. Now back to next question, 33. 33 is a trait in an organism is influenced by, a traits for a particular characters is influenced by parental DNA, maternal DNA, both parental DNA, none of these. Listen carefully. The organism's trait may affected from the both maternal and paternal DNA. Keep in mind, not only paternal DNA comes an effect to the body. Listen, suppose that the 2 parents involved in the formation of new young one, and one is tall, another is dwarf, while the offspring is tall, then you cannot say the tall parent is male or female. It may be female or the dwarf may be male, but any one of the parents is tall, then their characters is transferred to the tallness. So the option number C is right. Many characters comes in your body from your mother, and many characters in your body are always are also comes from the fathers. So fathers and mothers, both kinds of characters present in your body, so there is no guarantee only parents or maternal DNA is responsible for your traits, for your characters. It may both the parental and maternal DNA. So the option number C is right. In next video lecture I will describe you the question number 34 onward, the including 34 I will revise each and every question. Now you must have to write answer of question number 24 to 33. Question number 24 to 33. Almost 10 question I have covered in this video section, and you need to
write and explain each terms in order to focus the concept only. In next video lecture you will see the revision of question number 34 onward. Thank you.